Hi friends, good evening. Welcome to this special YouTube session on current assets and current liabilities as per Schedule 3. तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं मीनिंग ऑफ द वर्ड करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी. आप लोग बोलोगे सर करंट एसेट करंट लायबिलिटी बहुत ही सिंपल वर्ड्स हैं. व्हाट विल यू डू हाफ एन आवर? आई टेल यू, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं करंट एसेट करंट लायबिलिटी एज पर Schedule 3. आपको लगता है you feel that you know the definition of current asset current liability, but frankly you don't know it. आपको डिटेल में इसका मीनिंग पता नहीं है, तो we'll be understanding these words in detail today. Before I start, I'll just tell you about मेरा जो बैच अभी चल रहा है Unacademy में for CA Intermediate November 23 exam. For CA Intermediate November 23 exam, I'm taking a batch for paper number 1 accounting. Full 100 marks का paper will be taken by me. Batch already start हो गई. We already started a batch on 13th of February. ये batch खत्म होगी on 31st of May. We have a lecture daily evening 6 to 8 p.m. तो daily evening 6 to 8 p.m. ये batch होता है and the language is Hindi English mix. The like what I'm speaking right now. तो in case you're looking for conceptual clarity, आपको चाहिए exhaustive coverage, best of material, this batch is for you. बट आप फिर से याद दिला दो, दिस इज फॉर November 23 एग्जाम. इट्स अ रेगुलर कोर्स. अप्रोक्सीमेट कोर्स ड्यूरेशन होगा 180 to 200 आवर्स का. एंड इफ यू आर टेकिंग एनी सब्सक्रिप्शन एट Unacademy, you can use my code CA Niket, CANIKET. This code will always give you special discount on all the Unacademy subscriptions. Now, let's begin. Now, before I move on to definition of current asset, current liability as per Schedule 3, मैं आपको जस्ट थोड़ा सा बता दूं अबाउट Schedule 3. तो बिट अबाउट Schedule 3 मैंने ऑलरेडी ले लिया था इंट्रोडक्शन टू Schedule 3 अर्लियर. तो Schedule 3 क्या है? इट्स अ पार्ट ऑफ कंपनीज एक्ट. कंपनीज एक्ट का पार्ट है. सर इसके अंदर क्या दिया हुआ है? इट कंटेन्स द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L. तो इसके अंदर फॉर्मेट है बैलेंस शीट P&L के. एंड Schedule 3 के अंदर सिर्फ वर्टिकल फॉर्मेट है. ये हॉरिजॉन्टल है. कैपिटल, लायबिलिटीज, बाजू में एसेट. दिस इज नॉट अलाउड इन Schedule 3. ये Schedule 3 में अलाउड नहीं है. Schedule 3 allows only the vertical format. अच्छा, अब Schedule 3 के अंदर भी there are 3 divisions. I repeat, Schedule 3 के अंदर there are 3 divisions. Division 1 applicable for companies who are following accounting standard. Division 2 applicable for companies जो Ind AS follow कर रही है. आपको फिर से याद दिला दो, Ind AS is only for companies जिसका net worth 250 crores और more है. Ind AS are for companies जिसका net worth 250 crores और more है. तो इंडिया में there are 2 sets of standards. एक है नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दूसरे हैं Ind AS. तो वेरी बिग कंपनीज Ind AS एप्लीकेबल, बाकी सब के लिए नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल. तो Schedule 3 के अंदर Division 1 is for those companies following AS, Division 2 is for those companies following Ind AS and Division 3 is for non-banking finance company, Muthoot Finance. तो NBFCs which are following Ind AS. And हमारे syllabus for CA Inter, for CA Intermediate only Division 1 is applicable. Division 2 and 3 आपको CA Final में आते हैं. For Division CA Intermediate only Division 1 applicable. 2 and 3 आपको CA Final में आएंगे. Okay, now I'll just go down to the definition of the word current asset, current liabilities. ठीक है, आज का सेशन. Now, हमें मालूम है कि भाई बैलेंस शीट जो हमारी बनती है अंडर Schedule 3, इट्स अ वर्टिकल फॉर्मेट. एंड इन दैट वर्टिकल फॉर्मेट वी स्टार्ट विद इक्विटी एंड लायबिलिटीज. नीचे आएंगे एसेट्स. इक्विटी एंड लायबिलिटी, नीचे आते हैं एसेट्स. एंड आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज दोनों क्लासिफाई होते हैं एज करंट एंड नॉन करंट. तो एसेट्स के अंदर करंट एसेट, नॉन करंट एसेट. लायबिलिटीज के अंदर करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी. Current liability, non-current liability. So we are learning the meaning of the word current asset, current liability, non-current asset, non-current liability. ठीक है? Now, जब भी मैं क्वेश्चन पूछता हूं, if I ask anyone what is the meaning of the word current asset? If I ask anyone what's the meaning of the word current asset? बताओ, क्या लगता है? Meaning of the word current asset. So something which will be realized within 12 months. Repeats as something which will be realized within 12 months. सर वो करंट एसेट है. करेक्ट, यू आर नॉट रॉन्ग. बट अगर क्वेश्चन आता 4 मार्क्स का, डिफाइन करंट एसेट एज पर Schedule 3, एंड अगर आपने ये लिखा है, यू गेट हाफ मार्क. तो 4 में से आधा मार्क मिलेगा. सर क्यों?
Let's see. As per your schedule 3, assets shall be classified as current when it satisfies any of the following criteria. When it satisfies any of the following criteria. तो 4 criteria दिए. Imagine 4 मार्क में पूछा है, हर एक criteria 1 मार्क. 4 criteria 4 मार्क्स, हर एक criteria का 1 मार्क. If it satisfies any of the criteria, वो current asset है. तो कहने से 4 में से एक भी satisfy हुआ, it's a current asset. ठीक है. तो 1, it's expected to be realized. It's expected to be realized or is intended for sale or consumption in company's normal operating cycle. It is expected to be realized. अच्छा, आपके debtors होंगे वो realize होते हैं. Debtors are realized. Intended for sale, finished goods हैं वो sale के लिए है. Raw material is for consumption. It's expected to be realized or is intended for sale or consumption in normal operating cycle. Simple words में, अगर कोई भी asset है जो normal operating cycle में realize होगा, वो current asset है. अब question आएगा सर, what is normal operating cycle? Question आएगा, what is a normal operating cycle? Okay, तो ये आपका हो गया normal operating cycle. आपने raw material खरीदा, raw material को आपने convert किया finished goods में, फिनिश्ड गुड्स को आपने सेल किया एंड आपको कैश मिला. रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया फिनिश्ड गुड्स, उसको सेल किया एंड यू गॉट कैश. तो फ्रॉम रॉ मटेरियल टू कैश, फ्रॉम रॉ मटेरियल टू कैश, ये आपका पूरा ऑपरेटिंग साइकिल है. रॉ मटेरियल टू कैश, इसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग साइकिल. अच्छा, एंड ये कितने पीरियड में कन्वर्जन हो जाता है? रॉ मटेरियल टू कैश कितना टाइम लगता है नॉर्मली? हाँ, कोई एकाध कस्टमर को ज्यादा क्रेडिट दिया, एकाध स्पेशल आइटम आया था, बनाने में टाइम लगा, इग्नोर दैट. नॉर्मली हाउ मच टाइम डज इट टेक फ्रॉम परचेज ऑफ रॉ मटेरियल टू कन्वर्टिंग इनटू कैश? दैट इज योर नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल. एनीथिंग व्हिच विल बी रियलाइज्ड इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, रिपीट, एनीथिंग व्हिच विल बी रियलाइज्ड इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, वो आपका करंट एसेट है. अच्छा सर, इमेजिन अ कंपनी व्हिच इज मैन्युफैक्चरिंग एयरक्राफ्ट. अगर आपको याद हो, 3 days back एयर इंडिया ने अराउंड 500 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है बोइंग कंपनी को. एयर इंडिया ने 500 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया बोइंग कंपनी को, एंड दिस ऑर्डर विल बी फुलफिल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years. तो ये ऑर्डर सीधे का सीधा आज नहीं आ जाने वाला है. दिस ऑर्डर विल बी फुलफिल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years. कहने से वो एयरक्राफ्ट जब भी हम ऑर्डर देंगे तब वो रॉ मटेरियल ऑर्डर करेंगे, फिर उसे फिनिश करेंगे, सेल करेंगे, क्रेडिट पीरियड भी कुछ होगा. इट टेक्स अ बिगर टाइम. ये कोई छोटी गाड़ी नहीं है यार, एयरक्राफ्ट है. इट विल टेक अ ह्यूज टाइम. एंड अगर आपको याद हो तो यूएस के प्रेसिडेंट बाइडेन जी ने ही हैज बेसिकली सेड कि ये ऑर्डर के कारण 10 लाख पीपल को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी इन यूएस. तो इमेजिन 500 एयरक्राफ्ट बनाने में 10 लाख पीपल आर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट. तो कहने से वो बनाने में इट विल टेक अ ह्यूज टाइम. तो फ्रॉम रॉ मटेरियल टू कन्वर्जन इनटू कैश फॉर अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एयरक्राफ्ट, कहने से बहुत ज्यादा टाइम हो सकता है. तो सपोज फॉर ए लिमिटेड, सपोज ए लिमिटेड का नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल 3 साल है. सपोज ए लिमिटेड का नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल 3 साल है, देन एनीथिंग व्हिच विल बी रियलाइज्ड विद इन 3 years विल बी अ करंट एसेट फॉर देम. तो अगर ए लिमिटेड का नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल 3 years है, एनीथिंग व्हिच विल बी रियलाइज्ड इन 3 years वो उनके लिए करंट एसेट है. तो चेक फर्स्ट पॉइंट क्या था? इट्स एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड और इंटेंडेड फॉर सेल और कंजम्पशन इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल. एक्सपेक्टेड टू रियलाइज, डेटर रियलाइज होते. इंटेंडेड फॉर सेल आपका फिनिश्ड गुड्स, कंजम्पशन आपके रॉ मटेरियल. अगर कुछ भी रियलाइज होगा नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में वो करंट एसेट. अगर आपका नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल 3 साल है तो एनीथिंग रियलाइजेबल विद इन 3 years इज अ करंट एसेट. अच्छा सर, अगर नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पता नहीं चल रहा है, तो दे हैव सेड यू विल एज्यूम इट एज 12 months. अगर पता नहीं चल रहा है नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, इट्स एज्यूम टू बी 12 months. ओके, सेकंड, if it is primarily held for being traded, simplest example आपका inventory.
ओके, तो इन्वेंट्री इज हेल्ड फॉर बीइंग ट्रेडेड, वो ट्रेड करने के लिए। तो अगर आपके पास इन्वेंट्री पड़ा है 10 साल से भी, इन्वेंट्री लाइंग विथ यू सिंस 10 years, स्टिल इट इज अ करंट एसेट। इन्वेंट्री लाइंग सिंस 10 years, अगर 10 साल से भी इन्वेंट्री पड़ा है ना, स्टिल वो करंट एसेट होगा। क्यों? इट इज प्राइमरीली हेल्ड फॉर बीइंग ट्रेडेड। तो एक, एनीथिंग रियलाइजेबल विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल करंट एसेट। सेकेंड, विच इज प्राइमरीली हेल्ड फॉर बीइंग ट्रेडेड, वो करंट एसेट है। थर्ड वन, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन 12 months आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। अच्छा, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज, कब से रियलाइज होने वाला है? विद इन 12 months। ओह सर, ये हमारा पॉइंट, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज विद इन 12 months आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। अब आपने बोला था सर रियलाइजेबल विद इन 12 months, कब से? डेट ऑफ सेल से या बैलेंस शीट डेट से? सेल किया तब से विद इन 12 months देखना है, या बैलेंस शीट डेट से 12 months देखना है? सर बैलेंस शीट डेट से, इसलिए यहां पे वर्ड है आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। अब पे अटेंशन, जस्ट पे अटेंशन, यहां पे आई जस्ट पुट अ स्टार एंड मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं। जस्ट पे अटेंशन, यू डोंट हैव टू राइट, दिस मटीरियल विल बी प्रोवाइडेड टू यू। जब भी आप हमारी रेगुलर बैच ज्वाइन करते हो तो दिस मटीरियल विल बी देयर, ऑल थिंग्स व्हाट वी आर राइटिंग हियर, तब आप लिखोगे। अभी जस्ट आप समझ लो, सपोज there is debtor, there is a debtor as at 31st March 22, there is a debtor as at 31st March 22, ठीक है, उसका ड्यू डेट, एक डेटर है बैलेंस शीट में, उसका ड्यू डेट इज से 1st of February 23, हमने उसको 10 months का क्रेडिट पीरियड दिया है। 31st January 23 इज द ड्यू डेट, ड्यू डेट 31st January है बेटा। एक्सपेक्टेड टू रिसीव, ये बंदा है ना, ये बंदा ऑलवेज 4-5 महीने लेट ही कर रहा है, तो एक्सपेक्टेड टू रियलाइज, व्हेन वी आर एक्सपेक्टिंग टू रियलाइज से 31st May 23, क्यों? जनरली पेज 3-4 months लेट, जनरली पेज 3-4 months लेट। अच्छा, तो डेटर है 31st March 22 को बैलेंस शीट में, ड्यू डेट कब है उसका? ड्यू डेट इज ड्यू ऑन 31st of January, 31st January उसका ड्यू डेट है, बट हमें लग रहा है वो पे करेगा 31st May को। ओके, ड्यू डेट इज 31st January, बट एक्सपेक्टेड है कि भी वो 31st May को पे करेगा। नाउ टेल मी, इज इट एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन 12 months फ्रॉम रिपोर्टिंग डेट? इज इट एक्सपेक्टेड? सी वर्ड लिखा था एक्सपेक्टेड, ड्यू डेट मत देखो, ड्यू डेट नहीं देखना है, आई हैव टू सी इज एक्सपेक्टेड टू रियलाइज इट, एक्सपेक्टेड टू रियलाइज, ड्यू डेट इज ऑफ नो यूज, इट इज एक्सपेक्टेड टू रियलाइज 31st May 22, ये 31st March, ये 31st May 23, कैन आई से आफ्टर 12 months हो गया। तो ड्यू डेट इज नॉट टू बी सीन, आपको ये देखना है कब वो एक्सपेक्टेड टू रियलाइज है। तो आई जस्ट राइट ओवर हियर, in balance sheet as at 31st March 22, it will appear as non-current asset. Sir, क्यों? It is not expected to realize within 12 months from reporting date. Due date नहीं देखना है, expected to realize देखना है। तो समथिंग विच इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज विद इन 12 months वो करंट है, एंड 12 months कब से देखना है? बैलेंस शीट डेट से। बैलेंस शीट डेट से 12 months में रियलाइज होगा, इट्स अ करंट। इफ विद इन 12 months रियलाइज नहीं होने वाला है तो वो नॉन करंट। एंड लास्ट वन, इफ इट इज कैश और कैश इक्विवेलेंट, कोई भी चीज जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो ऑलवेज करंट एसेट। कोई भी चीज जो कैश या कैश इक्विवेलेंट है वो करंट एसेट है, अनलेस उसमें रिस्ट्रिक्शन है, आप उसे यूज नहीं कर सकते हो। अनलेस इट इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम बीइंग यूज्ड टू सेटल अ लायबिलिटी फॉर एटलीस्ट 12 months आफ्टर रिपोर्टिंग डेट।
unless it is restricted. It is restricted from being used to settle liability for at least 12 months after reporting date. यहां पे मैं एग्जांपल दे रहा हूं रिस्ट्रिक्शन का, विजय माल्या का बैंक अकाउंट. ओके, नाउ उन्होंने बोला है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑलवेज करंट एसेट होते हैं. तो कैश पड़ा है या बैंक बैलेंस, कैश पड़ा है या बैंक बैलेंस, वो सारे करंट एसेट हैं. बट अगर आपके बैंक अकाउंट में रिस्ट्रिक्शन है, यू कैन नॉट यूज इट. अगर आपके बैंक अकाउंट में रिस्ट्रिक्शन है, यू कैन नॉट यूज इट. सर कितने टाइम यूज नहीं कर सकता? एटलीस्ट 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट. तो बैलेंस शीट डेट से बाद नेक्स्ट 12 मंथ्स एटलीस्ट मैं यूज नहीं कर पाऊंगा. इफ आई वोंट बी एबल टू यूज फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स एटलीस्ट, देन इन दैट केस उसको हम नॉन करंट एसेट बोलेंगे. जैसे विजय माल्या के बैंक अकाउंट में पैसा है, नॉर्मली बैंक बैलेंस इज करंट एसेट. बट सपोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया है. इफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज फ्रीज द बैंक अकाउंट, कैन आई से ही कैन नॉट यूज दैट मनी? एंड अगर वो रिस्ट्रिक्शन एटलीस्ट 12 मंथ्स रहेगा, बैलेंस शीट डेट से एटलीस्ट 12 मंथ्स रहेगा, तो इट इज नॉन करंट एसेट. So if it is cash and cash equivalent, it's a current asset unless it is restricted from being used to settle liability for at least 12 months after the reporting date. अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन है, मैंने FD करी है, I've done a fixed deposit. अच्छा, FD up to 1 year तो current asset. FD up to 1 year always current asset होगा. क्यों? Expected to realize within 12 months. FD up to 1 year तो current asset है. अच्छा, FD 5 साल की, if I've done a fixed deposit for 5 years, current asset या non-current? I've done a fixed deposit for 5 years. अगर आपने fixed deposit करी 5 years की, अगर वो cancelable है, then it is still a current asset. If something is cash or cash equivalent, कभी भी आप cancel कर सकते हो, cash मिल जाएगा. कभी भी आप cancel कर सकते हो, cash मिल जाएगा. It is a cash and cash equivalent, वो current asset है. तो all cancelable FDs, यहां पे मैं डबल स्टार लिख रहा हूं, and I just write down below. All cancelable FDs are cash and cash equivalent. All cancelable FDs are cash and cash equivalent irrespective of period. And so they are classified as current asset irrespective of period. 5 साल की FD है तो भी अगर cancelable है तो cash and cash equivalent है. They are classified as current asset. If FD is non-cancelable, अगर FD non-cancelable है, वो भी at least 12 months after reporting date. If FD is non-cancelable for at least 12 months, कब तक नॉन कैंसिल? एटलीस्ट 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट. रिपोर्टिंग डेट माने बैलेंस शीट डेट. तो बैलेंस शीट डेट से नेक्स्ट 12 मंथ्स आप उसे कैंसिल नहीं कर सकते. देन it would be classified as non-current asset. If something is cash and cash equivalent, वो always current asset है. तो अगर आपकी cancelable FDs है which can be cancelled any time, तो always current asset irrespective of period. या cash and cash equivalent irrespective of period, and इसलिए उसको हम current asset बोलते हैं. अगर कोई FD नॉन कैंसिलेबल है, सर कितने टाइम नॉन कैंसिलेबल? एटलीस्ट 12 मंथ्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट. मिनिमम 12 मंथ्स तक उसे कैंसिल नहीं कर पाऊंगा बैलेंस शीट डेट से. बैलेंस शीट डेट से नेक्स्ट 12 मंथ्स आई कांट कैंसिल, तो वो नॉन करंट एसेट होगा.
Okay, so now go and check the definition of the word current asset. Current asset is an asset which satisfies any of the following criteria. 1. It's expected to be realized or is intended for sale or consumption in normal operating cycle. Second, primarily held for being traded. Third, expected to be realized within 12 months from the reporting date. And fourth, if it is cash and cash equivalent, वो current asset है unless it is restricted from being used to settle a liability for at least 12 months after the reporting date. कोई भी condition satisfy हो तो current, all four condition not satisfied. All four condition not satisfied तो non-current. All others are non-current. Okay, तो with it current asset, non-current asset. अब मैं जा रहा हूं current liability. This was current asset, non-current asset. Now we go to current liability. A liability is classified as current when it satisfies any of the following criteria. Similar. Liability is classified as current when it satisfies any of the following criteria. एक भी criteria satisfy होगा वो current liability. Okay. Expected to be settled in normal operating cycle. अच्छा, अगर हमारा normal operating cycle 3 years है, अगर हमारा normal operating cycle 3 years है, anything payable within 3 years or anything expected to be settled within 3 years वो current liability होगा. अगर operating cycle 3 years है, if it is expected to be settled in normal operating cycle, current liability. Primarily held for being traded. Primarily held for being traded. Now this is actually rare. Liabilities are not held for trading. Inventory है वो held for trading है. Liabilities are not. We don't sell our liabilities. We don't sell our liabilities. That is very rare. Only for banks, insurance company ये आता है. I'll take that later. It's very very rare. Normal companies में नहीं होता. Third, it is due to be settled within 12 months from reporting date. Now see, यहाँ पे मैं word highlight करता हूँ due. If it is due to be settled within 12 months from reporting date, due to be settled within 12 months, तो वो current liability. Now let me just go back. ये जो question debtor का था ना, similar मैं creditor का ले रहा हूँ. तो there is a creditor. As at 31st March 22, due date है 31st January 23. बट हाँ, कब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेटल का? एक्सपेक्टेड टू सेटल इस 31st May को. We generally pay 3-4 months late. We generally pay 3-4 months late. अच्छा, तो क्रेडिटर है 31st March को, यहां पे डेटर थे, यहां पे क्रेडिटर है. ओके, तो क्रेडिटर 31st March को है, ड्यू डेट इज 31st January 23, बट वी एक्सपेक्ट टू सेटल 31st May को. अच्छा, डेटर में हम लोग ड्यू डेट नहीं देखते थे, एक्सपेक्टेड टू रियलाइज देखते थे. बट लायबिलिटी में हम लोग एक्सपेक्टेड नहीं देखेंगे. क्या देखेंगे? ड्यू देखेंगे. तो ड्यू कब है? इफ इट इज ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 months, तो यहां पे ये 31st March, ड्यू इज 31st January. ये 31st March, ड्यू इज 31st January, 10 months. तो इट इज ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 months, ये करंट लायबिलिटी है. तो यहां पे आंसर में इन बैलेंस शीट एज एट 31st March 22, it will appear as current liability. यहां पे हमें ड्यू देखना है, not expected to settle. तो it's due to be settled within 12 months है, it will appear as current liability. तो see, so much precision you need. करंट एसेट में हम लोग देख रहे थे expected to realize date, expected to realize within 12 months था. यहां पे due to be settled within 12 months है. ठीक है. एंड द लास्ट पॉइंट,
And the last point, D point, if you do not have an unconditional right, if you do not have an unconditional right to defer a liability for at least 12 months after the reporting date, you do not have an unconditional right to defer it for at least 12 months after reporting date, तो वो current. But अगर आप उसे defer कर सकते हो, if you have an unconditional right to defer it for at least 12 months after reporting date, तो वो non-current. I give you example. Imagine I want to start a business. मुझे business start करना है and मैंने अपने पापा से लोन ली. I want to start a business. I'm taking a loan from my father and मैं पापा को पूछता हूँ, पापा when I have to give it back. मैंने पापा को पूछा, पापा कब वापस करना है? मैं पापा says, Niket, you pay whenever you want. अच्छा, पापा से लोन ली, पापा ने बोला, Niket, you pay whenever you want. अच्छा, तो can I defer it for at least 12 months after reporting date? क्या मैं डिफर कर सकता हूँ एटलीस्ट 12 महीने बैलेंस शीट के बाद भी? या ओके, डू आई हैव दैट अनकंडीशनल राइट? यस. पापा ने बोला निकेत यू पे व्हेनेवर यू वांट, तो आई हैव अ अनकंडीशनल राइट. आई हैव अ अनकंडीशनल राइट टू डिफर इट फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स. तो यहां पे क्या लिखा था? इफ यू डू नॉट हैव अ अनकंडीशनल राइट तो करंट में आएगा. If I have an unconditional right to defer it and I expect to pay after 12 months only, तो मेरे पापा की loan will be non-current liability. I have an unconditional right to defer it for at least 12 months after reporting date. Now imagine, मैंने पापा से लोन नहीं ली, मेरे फ्रेंड से लोन ली. मैंने पापा से लोन नहीं ली, मेरे फ्रेंड से लोन ली. एंड मेरे फ्रेंड ने बोला निकेत यू पे whenever you want. फ्रेंड ने क्या बोला? निकेत यू पे whenever you want, but if I need in between, I'll tell you 1 month in advance. मेरे फ्रेंड ने बोला निकेत यू पे whenever you want, but अगर मुझे पैसा चाहिए, मैं आपको 1 month की नोटिस दे दूंगा. तो कहने से my friend tells me tomorrow I have to give back money within a month only. तो do I have an unconditional right to defer? नहीं, condition apply. If he needs in between, he will give me 1 month notice. तो do I have an unconditional right? Answer is no. If I do not have an unconditional right, if I do not have an unconditional right to defer for at least 12 months, वो current liability होगी. तो पापा की लोन I have an unconditional right, non-current liability. फ्रेंड की लोन I do not have an unconditional right, वो current liability. You do not have an unconditional right. Example था हमारा friend's loan. तो फ्रेंड ने बोला निकेत यू पे व्हेनेवर यू वांट, बट इफ आई नीड इन बिटवीन, अगर मुझे पैसा चाहिए मैं आपको 1 मंथ की नोटिस दूंगा. तो आई डू नॉट हैव अ अनकंडीशनल राइट. इफ ही आस्क आई हैव टू गिव विद इन 1 मंथ. इफ ही आस्क मुझे 1 मंथ में देना पड़ेगा. तो एनी ऑफ दिस 4 थिंग्स, एनी ऑफ दिस 4 पॉइंट्स आर सैटिस्फाइड, इट इज अ करंट लायबिलिटी. अगर कोई भी पॉइंट सैटिस्फाई नहीं हो, अगर कोई भी पॉइंट सैटिस्फाई नहीं हो, देन इट बिकम्स अ नॉन करंट लायबिलिटी. Any of the 4 points satisfied, it's a current liability. कोई भी satisfied नहीं हो, it's a non-current liability. So this is definition of the word current asset, current liability, non-current asset, non-current liability as per schedule 3. Tomorrow again we have a session 8:30 to 9 p.m. Sir, कल क्या करेंगे? तो कल we'll be taking balance sheet format as per schedule 3. And day after tomorrow again 8:30 to 9 हम लोग करेंगे P&L का format as per schedule 3. See, these sessions are to help you understand how do we teach, material कैसे आपको provide करते हैं. So this is helping you to take better decisions whether to take a subscription at Unacademy or not. So rest assured you are getting the best of faculties with the best of material, best of coaching at the affordable price. Yes, at the affordable price. एंड फिर से रिमाइंडर करा दूं, मैंने अपना बैच सीए इंटरमीडिएट पेपर 1 अकाउंटिंग, इंटर का बैच पेपर 1 अकाउंटिंग बैच फॉर नवंबर 23 एग्जाम ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है. द बैच हैज बीन स्टार्टेड ऑन 13th of February. इट विल गेट ओवर ऑन 31st of May. एवरी डे इवनिंग हमारा टाइम होता है 6 to 8 PM. इन केस आपने ये बैच ज्वाइन नहीं किया, यू वांट टू ज्वाइन नाउ. सर थोड़े लेक्चर मिस हो गए, चलेगा? चलेगा. आई हैव टेकन अप टॉपिक जिसका कोई रिलेशनशिप ना हो, तो पहले आपने थोड़े लेक्चर मिस कर लिए, इट्स ओके, यू कैन स्टिल ज्वाइन फ्रॉम नाउ. डेली इवनिंग 6 to 8 PM इज लेक्चर.
And whenever you're taking subscription at Unacademy, use my code CA Niket, आपको always special discount मिलेगा. That's it for today. See you all tomorrow. Till then, tata, bye bye, take care.